ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੋ ਮਤ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਇਹੋ ਬਾਣੀ जो जियो जाने तिसे अंतर रवे हर नामा। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। वाहिगुरु साहिब जीओ सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततै सार ना जानी। ततै सार ना जानी गुरु भाजों ततै सार ना जानी। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततै सार ना जानी। ततै सार ना जानी गुरु भाजों ततै सार ना जानी। तेहि गुणी संसार ब्रह्म सुता सुतिया रैन विहाणी। गुर कृपा ते सेव जन जागे जिन्ना हर मन वसिया। बोले है अमृत बाण कह नानक सो तत पाए। जिसनो अन दिन हर लिव लागे जागत रैन विहाणी। कह नानक सो तत पाए। जिसनो अन दिन हर लिव लागे जागत रैन विहाणी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठी परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी आप जी ने पवित्र बाणी का पाठ पासे पासों श्रवण किया है। आओ समा है गुरमत विचारों का। धन गुरु गुरु अमरदास महाराज पातशाह जी की पवित्र मुखार बिन तो उच्चारण की हुई आनंद साहिब की पवित्र बाणी की 27वीं पौड़ी आप जी ने हुणे श्रवण की है। धन गुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी इस पावन पवित्र पौड़ी अंदर कृपा बख्शिश करते हैं कि जितनियां भी स्मृतियां शास्त्र हैं उन्हां विच बहुतायत पाप ते पुण्य की गल की गई है। सनातनी मत विच 27 स्मृतियां ने 18 पुराण ने 4 वेद अते 6 शास्त्र ने। ते महाराज आखदे ने भी स्मृतियां अते शास्त्रां दे विच पुण्य दे पाप दी विचार नूं जिहड़ा है बहुता दर्शाया गया दस्या गया पर तत दी गल नहीं दसी। ततै सार न जानी
ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਮੰਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਮ ਮੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਪ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਹੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਾਈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤਾਇਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਉੱਤੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਚਲੀਏ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆ ਚੱਲ ਪਾਰਟੀ ਚਲੀਏ, ਆ ਸਿਨੇਮੇ ਹਾਲ ਚਲੀਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹਿ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 3 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਲਸ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਦੱਸ ਦੇਗਾ। 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਓ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਫਲਾਣੇ ਨਾਟਕ 'ਚ, ਫਲਾਣੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਈਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ, ਔਖਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਵੋ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਔਖਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਵੋ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਔਖਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤਾ ਝੁਕਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੋ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਲਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਵਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਨੇ? ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਪਰਾਇਆ ਚਿਤਵਣਾ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ, ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਪਾਪ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੌਕ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਦਾ, ਪਾਪ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਪ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਬਾਲਕ ਭਾਏ ਸੁਭਾਈ, ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ, ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਬੌੜ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ऐसे मनुख फिर बच नहीं सकते। क्यों? मन जाने सब बात, कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगण करे, काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं परे, हाथ उत्ते दीवा रख के चानना करके ते खूह विच बंदा छाल मारे, इनू सियाणप नहीं कहते, असल विच जान बुझ के कीती हुई गलती है। तो मेरे पातशाह जी आखते ने, एक वो कर्म ने ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆਨ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਏ कि किवें मनुख शौक दे वजों ही संसार दे अंदर पाप करता है। तो सतगुर पातशाह जी पहला पावन बचन करते ने, गुरुदेव आखते ने, पाप करें पंचां के बस रे, तीर्थ नहाए कहे सब उतरे। पाप करता है पंजां दे वस हो के, काम क्रोध लोभ मोह हंकार, इहदा मतलब मन दे चस्कियां वास्ते पाप करता है, अपने स्वार्थ को अगे रख के पाप करता है। पाप करना की कोई मजबूरी नहीं, जान बुझ के करता है, अपने शरीर के चस्कियां को पूरे करने वास्ते ही पाप करता है। पातशाह कहेंगे पहला कारण मनुख अपने मन के रस को
पूरा करने वास्ते, शरीर के स्वार्थ को पूरा करने वास्ते ये पाप करता है। पाप करे पंचा के बसरे, तीर्थ नहाए कह सब उतरे, बहुर कमावे हुए निशंक, जबपुर बांध खरे का लंक। ऐसे मनुख भावें फिर धार्मिक स्थानां ते जाके ते आखण भी तीर्थां दे इशनान कर लए ने ते हुण पाप सानू नहीं असल विच साडे जीवन विच होणगे, पर कह लगे पाप जिहड़े हन एक बारी कीते वो फिर बख्शे नहीं जा सकते। दूसरा पाप मनुख या तो इस्त्री वास्ते या दोस्तों ते मित्रां नूं खुश करने वास्ते करता है। तो ऐसे भी मनुख ने जिहड़े संसार के अंदर पाप करते हैं, मार जाते हैं कि ऐसे मनुख जिहड़े अपने दोस्तों ते मित्रां नूं खुश करने वास्ते गुनाह करते हैं। वेखो भी मैं बहुत वड्डा बंदा हाँ, बहुत अमीर बंदा हाँ, केवल दोस्तों ते मित्रां नूं खुश करने वास्ते पाप कर रहे हैं। तो ऐसे मनुख भी महाराज आखते हैं भाई जेड़े ये भावना रख के भी लोग मैनू बहुत ही अमीर ते वड्डा कहण ते भावें वो किसी का हक मार के अपनी वडियाई करते होण, वो भी बख्शे नहीं जा सकते, वो भी गुनाहगार ने। साहब आखते ने ऐसे मनुख जिहड़े ने गुरु दियां नज़रां विच कदी भी परवान नहीं हो सकते, रब दे दर ते परवान नहीं हो सकते। कामन लोड़ै सोयना रूपा, मित्र लोड़ेंदे सुखां दाता। जे कामन कहते इस्त्री नूं, जे कामन एक ख्वाहिश रखती है, कह सोने चांदी आदि की कामना रखती है तो मनुख उसनूं पूर्ण करने वास्ते गलत काम करने शुरू कर दे। कामन लोड़ा सोना रूपा, मित्र लोड़ेंदे सुखां दाता। नानक पाप करे तिन कारण, जंपुर खरा बांधाता। कह लगे एहो जा मनुख जमा दी पूरी विच मार खांदा है ते पापां दा भागी बनदा है। जेड़ा मनुख केवल संसार विच विषय विकारां नूं अगे रख के ते कह लगे मित्रां ते दोस्तां नूं खुश करने वास्ते पाप करदा है, तां ऐसा मनुख जमा दी पूरी विच मार खांदा है। तीसरा सतगुर पातशाह जी ने आख्या कई बारी बंदा अपने परिवार वास्ते भी गुनाह करता है। वाल्मीक जिन्हां ने रामायण लिखी है, इन्हां दा जिहड़ा पहला जीवन हुंदा सी ना, वो कुछ इस तरह दसी कि इन्हां ने नित ही राहियां नूं लुटना, रस्ते में छुप के बैठ जाते सन ते जे कोई राही लंघना तो उन्होंने लुट लेना। एक दिन कोई रब का प्यारा उतों लंघ रहा सी, ये लुक के बैठे सन, इन्हां ने वेख्या ते उस वेले उत्ते हमला करता चाकू लैके। उस रब के प्यारे फकीर नूं कह लगे भी जो भी है तू कट दे। ते उन्होंने रब का प्यारा सी, वो कह लगा तू मैनू कह लगे मारना, तू जो लेना उंज मेरे को ले ले, पर मैनू एक गल का जवाब दे भी तू आ चोरियां आ ठगियां आ इस तरह मार पीटे क्यों करना है। वो कह लगा मैं अपने परिवार वास्ते करना है, अपने परिवार वास्ते करना है। तो उस रबी फकीर ने आख्या फिर तेन पता नहीं, ये भावें तू अपने परिवार वास्ते करना है, पर यह कीते हुए गुनाह की सजा तेनों भोगनी पैनी, तेरे परिवार को नहीं। क्योंकि परिवार ने तो कह देना तेरी जिम्मेवारी जिथों मर्जी लैके आ, प्रशादे पानी का प्रबंध कर, जिमें मर्जी कर, परिवार ने कह देना है। पर यह तेरा फर्ज बनता है कि तू 10 नौहां की किरत कमाई करके ईमानदार चंगा धन दौलत चंगा पैसा कमाना है, या किसी को लुट खो के चोरियां करके मार के ते पाप करके पैसा इकट्ठा कर। कबीर साहब पावन बाणी अंदर बचन करते हैं, बहु पर पंच कर पार धन लियावे। बड़े तरीकिਆਂ नाल गलत तरीकिਆਂ नाल मनुख धन इकट्ठा करके लिया। बहु पर पंच कर पर धन लियावे, पराया धन अपने घर में लिया। सुत दारा पे आन लुटावे, फिर वो अपने बीवी ते बच्चियां ते वो धन लुटाउंदा है, खर्च करता है। कबीर साहब आखते ने बहु पर पंच कर पर धन लियावे, सुत दारा पे आन लुटावे। मन मेरे भूले कपट ना कीजे, ये छल ना करया कर। अंत निबेड़ा तेरे जी पै लीजै, याद रखी अंत वेले जदों निबेड़ा होवेगा वो हिसाब किताब तेरे तो लिया जाएगा, तेरे तो पूछा जाएगा, क्योंकि तू काम करना है। तो महाराज ने बाणी में आख्या, गुरु तेग बहादुर महाराज आखते ने
नर अचेत पाप ते डर रहे। हे अपने मकसद नूं भुले हुए मनुख पापां तो डरिया कर, पाप ना करिया कर। ते पातशाह जिहड़े मनुख पाप करते हैं उन्हां दी हालत की हुंदी है? साहिब आखदे पापी कर्म कमाउंदे करदे हाय हाय, नानक मथन माधानियां ते मथे धर्म राए। कहन लगे जिवें दुध नूं मधानी विच पा के फिर रिड़किया जाता है ना, पुराने समयां विच दुध नूं मधानी विच एक निक्के घड़े आकार की मधानी हुंदी है, उहदे विच दुध नूं पा के ते रिड़किया जांदा सी। जिस तरह कहन लगे विच दुध फिर कदी इस पासे कदी उस पासे जाके वजदा है। कहन लगे ये हालत तेरी होनी है, याद रखी जिवें मधानी विच पिया पे हुए दुध की हालत हुंदी है, याद रखी धर्मराय के दर ते कहन लगे तेरी भी ये हालत होनी। हुण धर्मराय की रब्बी कानून ही असल दे विच धर्मराय है। रब दा कानून सारियां वास्ते एक है, भावें अमीर है भावें कोई गरीब है, कोई राजा है भावें कोई रंक है। रब दा कानून सब वास्ते एक है। जे कोई राजा पाप कमाउंदा है ते राजे नूं भी उहदे कीते हुए पापां दी सज़ा उन्नी मिलनी जिन्नी एक आम मनुख नूं मिलनी। यही तो कुदरत की सब तो वड्डी खासियत है कि उहदे घर विच कोई भेदभाव नहीं, कोई फर्क नहीं है। भावें कोई अमीर भावें गरीब, कोई छोटा कोई वड्डा, कोई पढ़िया भावें अनपढ़ है, कोई ज्ञानी भावें अज्ञानी है, पर उहदा कानून सारियां वास्ते इक्को है, कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं। तो उहदा कानून तो पहला ही संसार दे विच काम कर रहा है। ते पातशाह आखदे ने याद रखी तेनों परमात्मा ने आज़ादी दी, स्वतंत्रता दी है, ते ये तेरे हाथ विच है भी तू चंगे करने काम के मंदे काम करने। दूजी गल पाप अते पुण्य जिहड़े हन वह मनुख नूं रब दे नेड़े या दूर कर सकते हैं, क्योंकि पाप ते पुण्य मनुख दे कर्मां तो ही बनते हैं। पर गुरबाणी में यह भी लिखा है भी कर्म परमात्मा का मिलाप नहीं करवा सकते। कर्मां कारण मनुख रब दे नेड़े ते हो सकता है या दूर हो सकता है, पर रब का मिलाप नहीं हो सकता। रब का मिलाप उसकी बख्शिश नाल ही होना, उनकी कृपा नाल होना। तो मेरे गुरुदेव ने कृपा की है कि एक समा ऐसा होंदा सी जदों मनुख पाप करदा सी ते पाप का रूप बिल्कुल वखरा होंदा सी। पता लग जाता सी लोगों को भी इस मनुख ने पाप किया, गुनाह किया। ते जे कोई मनुख चंगा काम नेकी वाला करता है तां भी पता लग जाता सी। पर अजकल हालात बदल गए। हुण अजकल पाप ने भी पुण्य की पोशाक पा के अपना रूप बदल लिया। हुण समझ नहीं लगती भी पाप है कि पुण्य है। हुण कई मनुख ऐसे ने जिहड़े इस गल का दावा करते हैं भी बहुत सारी धीआं पंजाब दे विच मैं वेखिआ है, बहुत सारिया धीआं दे विआह करवा रहे हैं, पर उनके पीछे भी स्वार्थ है। 20-25 धीआं दे नाम से दौलत पैसा इकट्ठा कर लिया, पर 5-7 का विआह करा लिया, बाकी खा गए। हुण वेखो कितनी चलाकी दे नाल एक पासे नेकी हो गई, लोगों को वेखण वास्ते ये भी पुण्य का काम है बड़ा, पर पिछे स्वार्थ की काम कर रहे हैं भी 5-7 के विआह करवा दिते, बाकियां दिखा गए। दूसरी गल वेखते हैं साडे समाज के अंदर जिहड़े पाप हो रहे हैं, पुत्रां नूं लैके धीआं दे नाल किस तरीके दे नाल भरूण हत्यावां कीतियां जांदियां ने, यह भी बहुत बड़ा गुनाह ते पाप है। गुरमत के अंदर मैं साझा करते हैं रहत मर्यादा विच भी ते वैसे गुरमत की रोशनी दे विच भी। जे गुरमत की रोशनी विच वेखीए 3 पाप मन्ने गए। एक पाप पहला सब तो वड्डा गुरु वालों बेमुख होना। दूसरा सब तो वड्डा पाप उदम तो आलसी हो जाना, उदम ना करना, मेहनत ना करना, यह भी बहुत वड्डा पाप है। तीसरा पाप सब तो वड्डा किसी का दिल दुखाना। ये 3 पाप गुरमत की रोशनी में जिहड़ी रहत मर्यादा है उनदे विच केसां की बेअदबी करनी, ये सब तो वड्डा पाप है। केसां की बेअदबी करनी। दूसरा नशा तंबाकू का सेवन करना। तीसरा व्यभिचारी होना। चौथा कुट्ठा खाना, मांस खाना। ये भी असल दे विच साहिब आखदे ने 4 रहतां ने, जिहड़ा मनुख इन्हां 4 रहतां तो बागी वो भी पापी, पापां दा भागीदार है। हुण मैं गल कर रहा सां, पहला तां समाज दे विच मनुख कोई बुरा काम करदा सी पता लग जांदा सी,
अजकल मनुख नेकी की पोशाक पा के बुरे काम करते, सामने लगेगा धर्म का काम कर रहे, पिछे अपना स्वार्थ रख के काम करता। जिवें कि वेखण विच आउंदा है समाज दे विच बहुत सारे ऐसे कर्म, भावें वो राजनीतिक लोग ने, भावें वो धार्मिक लोग ने, भावें वो समाज के अंदर समाजिक लोग ने, बहुत सारे कर्म धर्म की आड़ दे विच करते हैं, जिहड़े कि वेखण नूं लगेगा भी धर्म के कारज ने, पर उन्हां विच धर्म की एक भी बात, एक भी गल जिहड़ी आ नज़र नहीं आती। उन्हां विच पाखंड, वहम भरम जिहड़ा है वो बहुत ही हावी हुंदा है। साहब आखदे ने भलिया तू याद रखी, तेरे कीते हुए ये जिन्ने भी पाखंड ने, इन्हां पिछे कीते स्वार्थ के अधीन गुनाह ने, वो सारे पाप ही बनते हैं ते तैनूं पापां दा भागी बनाउंदे ने। तो मेरे गुरुदेव अज की इस पावन पौड़ी अंदर किरपा करते हैं कि धार्मिक ग्रंथां दे अंदर बहुती पाप ते पुण्य की गल की गई, पर गुरबाणी दे अंदर पाप ते पुण्य नूं सिर्फ इन्ना को दर्जा दिता गया कि जे तू चंगे काम करेगा तो अपने आप को आखेगा भी मैं नेक बंदा हाँ, मैं पुन्नी बंदा हाँ, तो जे तू आखेगा भी इस बंदे ने बुरे काम किए, माड़े कर्म किए ने, तो यह मनुख पापी है। पर कर्मां दे नाल रब की प्राप्ति नहीं होनी, ये गल याद रखना। कर्मां दे नाल जे कोई मनुख आखे मैं बहुत चंगे कर्म करता, इहदा एक होर पक्ष विचार लईए। गुरु साहब ने बाणी विच आख्या किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मिलो राम। अपने कीते हुए कर्मां कारण मनुख रब तो विछड़ गया। मान लो भी बंदा को 50 साल माड़े काम करता रहा, बुरे कर्म करता रहा, हुण बंदे नूं पता लग जाए भी 50 साल तो मैं रज के 60 साल बुरे काम किए ने, कर्म किए, तो उन्होंने यह गल का पता लग जाए बई चंगे काम कितिया रब की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा मनुख चलाक सारी जिंदगी बुरे काम करेगा, अखीरले 2-4 साल आगे चंगे करने शुरू कर देगा, फिर तो अपनी सियाणप होगी ना, फिर रब की तो कोई वैल्यू ना हुई भी सारी जिंदगी माड़े काम कर लो, अखीर ते आगे चंगे कर लो। रब ना तो न्याणा है, ना ही रब मूर्ख है। असी रब नूं इन्ना अनजान ना समझिए कि उन्होंने पता नहीं भी सारी जिंदगी रज के तू पाप कमा लै, ते अखीरले समय आके 2-4 साल चंगे काम कर ले, पाप के काम करता रहा, अज पुण्य के काम करना, रब का मिलाप हो जाएगा। नहीं, साहब ने तां ही आख्या है कीते हुए कर्मां कारण रब तो दूर जा सकदा है, विछोड़ा हो सकता है, पर उनकी किरपा तो बिना मिलाप नहीं हो सकता। किते भी बाणी विच प्रमाण नहीं आया भी तेरे कीते कर्मां नाल रब का मिलाप हो जाएगा। तो साहब आखदे ने ये पाप पुण्य की विचार सिर्फ समाज दे विच एक बैलेंस बनाने वास्ते ही पैदा की गई कि समाज जिहड़ा है वो एक बैलेंस दे विच जीवन बतीत करे, एक मनुख के अंदर डर पैदा कर देता कि भी जे तू आ माड़ा काम करेगा तो पापां दा भागी होवेगा। मनुख थोड़ा जिहा गुरेज करता है, डरदा है कुछ समाज तो, कुछ इस धर्मी पक्ष तो कि जे मैं पाप किया तो शायद हो सकता मैनूं नरकां वाले पासे जाना पवे। पर पाप पुण्य नूं गुरबाणी अंदर बहुता महत्व नहीं दिता गया। तो साहब आखदे ने पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लिया जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, तेरे हाथ विच आप कह लगे तेरी जिंदगी है, तू किहो जी बनाउणी है, ये तेरे ते डिपेंड करदा है। तो साहब इत्थे किरपा करते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही गल जी गुरु ग्रंथ साहब को छड्ड के बाकी धार्मिक ग्रंथों में पाप ते पुण्य की गल की गई, पर गुरु ग्रंथ साहब तत्त की गल की है, परमेश्वर की गल की है। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी, कह लगे जिहड़ा तत्त परमेश्वर है उनकी तो गल ही नहीं, बस केवल पाप ते पुण्य की ही कह लगे विचार होती रही। तत्तै सार ना जानी गुरबाजों तत्तै सार ना जानी, पर तत्त की गल गुरु तो बिना समझ नहीं आ सकती, गुरबाणी तो बिना तत्त की सोझी नहीं प्राप्त हो सकती। तो मनुख गुरु तो बिना इस संसार के अंदर कह लगे कभी भी उस परमेश्वर प्रभु के चरणों नाल जुड़ के ते आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। ये गुरु ही कृपा करते कि मनुख को परमेश्वर नाल जोड़ता है। तिही गुणी संसार कम सुता सुत्या रहन विहानी, तो ये 3 गुणों में संसार के विच 3 गुण की ने, रज तम ते सत गुण। जिहड़ा तम गुण है उहदे विच केवल अपने बारे सोचना, रज गुण है अपने बारे सोचना पर अपने आसे पासे के समाज बारे सोचना। जिहड़ा सत गुण है अपने बारे भी सोचना ते संसार बारे सोचना, पर फिर भी मनुख संसार में ही फसिया रहा। गुरु साहब ने चौथे पद की गल की है कि जिहड़ा संसार तो उत्ते उठ के जिउंदा है
ਉਹ ਨਾ ਰਜੋਗੁਣੀ, ਨਾ ਤਮੋਗੁਣੀ, ਨਾ ਸਤੋਗੁਣੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਦਿਨ ਹਰਲੇ ਲਾਗੇ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਭੇਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।